Good morning, students. Let's begin the further topic of the chapter, the Mughal Empire. And in this chapter, in this topic, we will proceed to the Akbar policies. And like about Akbar, like very well known book about Akbar is that Akbarnama or Aine Akbari, one of the part of it. So Akbar ordered one of his close friend and courtiers, Abul Fazl, who wrote a history of his reign, and Abul Fazl wrote 3 volumes of history Akbar's reign, like title Akbarnama. And this first volume dealt with Akbar's ancestors, and second volume is recorded the event of Akbar reign, and third is of Aine Akbari. मीन्स अकबरनामा जो है आपके 3 वॉल्यूम्स में है, 3 कैटेगरी है. फर्स्ट इज in which the reign or the tenure is shown. Another is that ancestor, forefather. And third one is that his means in that particular administration you will see. So Aine Akbari, the third volume is Aine Akbari, deal with Akbar administration, household, army, and revenues, and of the geography of his empire, means how it was expanded, and also provides rich detail about the traditions and culture of the people living in India, means how he tackled the population, vast population, and different kind of people living in India. Most interesting aspect about Aine Akbari is rich statistical detail about the things diverse as the crops, yield, prices, wages, and revenues. So all these have been given in this book. Then another is closer look to Akbar policies. Afterwards, we proceed to that Akbar policies, how kind of a ruler was and what he had done in his tenure. So the broad features of administrations were laid by Akbar were elaborately discussed by Abul Fazl. डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है. अबुल फजल राइटर, उसने सब लिखा है इन बुक अकबरनामा. You must remember the name of the book and name of the writer. So Abul Fazl wrote and name of the book is Akbarnama. The particular in its last volume आईने अकबरी. आईना से मतलब यहाँ पर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, whatever the things had happened, it had been written by him. So आईने अकबरी, Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called subas. Subas governed by subadar. अब आप कहेंगे मनसब और मनसबदारी इसी तरीके से थे, the people, the person who hold the charge of that particular region. So Suba means an area, the provinces, and governed by the person was called Subedar, who carried out both political and military function. Such और each provinces had a finance officer और दीवान. मतलब हर provinces पे एक फाइनेंस ऑफिसर होता था. फाइनेंस ऑफिसर का मतलब है जिसके पूरा, जिसको रिवेन्यू और इनकम और ये सब चीज़ों का पता होता था. टू दैट वी कॉल दीवान. And for maintenance of peace and order, the provinces, the सूबेदार was supported by the officials. जो उसको जो सपोर्ट करते थे वो वहाँ के ऑफिसर्स सपोर्ट करते थे. किस चीज़ के लिए? कि उस जगह पर पीस और यू कैन से गुड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेंटेन. So such as the military pay minister is called बख्शी. मिलिट्री का जो पे मास्टर था उसको क्या बोलते थे? बख्शी. So Bakshi and the minister in charge of religious and charitable patronage, that is Sadar, military commanders फौजदार and the 2 पुलिस कमांडर्स कोतवाल. आज आप देखेंगे कि ये चीज़ें सब कुछ जैसे फौजदार और ये कोतवाल ये सब आज के टाइम पे भी दिखती हैं, लेकिन दीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. सो यहाँ पे हमने जैसे देखा फर्स्टली लाइक द सदर or Suba, then Subedar, and then we can say Fauzdar, that is military commander, then police commander, that is Kotwal. So after that there is one of the important, क्योंकि पूरा मुगल पीरियड हम पढ़ रहे हैं, खाली अकबर को नहीं पढ़ रहे हैं, तो मुगल पीरियड में उसके बाद उसके सन जो थे लाइक जहांगीर,
उनका क्या सिस्टम था, हाउ ही रूल्ड। सो उसकी जो वाइफ थी उसका यहाँ पर रोल प्ले हो जाता है, क्योंकि वन इट हैपेंड दैट ही फेल इल, सो ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ हिम, हिज वाइफ टुक केयर ऑफ द एम्पायर, उसने थोड़े टाइम के लिए संभाला। तो उसकी वाइफ का नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा मैरिड विद एम्परर जहांगीर इन 1611, means after Akbar. We know that Akbar died in 1605 और 6 के आसपास उसकी डेथ होती है, एंड रिसीव द टाइटल ऑफ नूरजहाँ, इसको बाद में नूरजहाँ का टाइटल दिया गया। ये कहा जाता है, नूर का मतलब होता है एक एक्सट्रीम लाइट उसके फेस पर थी, शी वॉज टू ब्यूटिफुल, एंड जहान का मतलब इस संसार में कोई उसके जैसा सुंदर नहीं है, ठीक है। तो हर नेम मीनिंग इज दैट नूर जहाँ, उसको दिया गया था ये टाइटल, असली में नाम उसका क्या था, मेहरुनिसा। तो नूर जहान शी रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क, मोनार्क कौन है, जहांगीर है, बहुत काफ़ी उसको सपोर्टिव थी। एज मार्क ऑफ ऑनर, जहांगीर स्टक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ओन टाइटल वन साइड एंड द ऑर्डर ऑफ स्क्रिप्शन। ये कहा जाता है कि उसके सिक्कों पर भी उसका नाम था। जहांगीर ने अच्छी तरीके से रूल किया। स्टक द नेम ऑफ द क्वीन बेगम जहान, और उसमें उसका नाम भी उसमें शो किया गया। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर और फरमान नूरजहाँ, और उसके नाम से ये सब चीज़ें, फरमान का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, सरकारी कोई आदेश देना। तो ये ऑर्डर दिया जाता था ऑफ जो नूरजहाँ से। एंड स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहाँ बादशाह बेगम, मतलब उसका अपने आप में ही एक बहुत अच्छा रैंक बन गया था। तो ये सब चीज़ें उसको एक रिस्पेक्टिव जॉब के लिए, रिस्पेक्टिव काम के लिए दिए गए थे। तो उसका नाम क्या हुआ, जैसे योर मेजेस्टी, मतलब जैसे मुस्लिम्स में बोलते हैं जिल्ल सुबहानी और पता नहीं क्या क्या टाइटल्स हैं, तो उनको ये अपनी लैंग्वेज के लिए मेजेस्टी, ठीक है, नूर जहान पाशा बेगम करके बोला जाता था। तो यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ, समटाइम इट कैन कम इन एग्जाम। So the round seals of states by son of Shah, son of Shah, मतलब गोल तरीके के सिक्के उसने चलाए और इनमें इस तरीके से उस पर लिखा गया। जहांगीर शी बिकेम एज द ब्रिलियंट एज द मून। जहांगीर ने उसको इतना होशियार, इतना इंटेलिजेंट पाया कि, और इतना सुंदर पाया कि जैसे कोई चंद्रमा। मे नूर जहाँ पाशा बी द लेडी ऑफ एज, और ये भी कहा जाता है उस टाइम की उससे खूबसूरत लेडी कोई नहीं थी। अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड had access to large mountains of revenue, sorry, amounts of revenue, while they were loyal and empire functions efficiently. But by the end of 17th century, many nobles had built independent network of their own. अब यहाँ पर हम वापस अकबर पे आते हैं। अकबर का जो नॉबल्स थे, नॉबल्स का मतलब है उसके जो हाई रैंक ऑफिशियल्स थे, जो रिलेटेड टू कोर्ट भी होते थे, जिनकी पूरी मतलब वो ज़्यादा होल्ड करते थे उसके एम्पायर को। कमांडेड लार्ज आर्मीज, उसके पास, उनके पास लार्ज आर्मी होती थी, उनकी एक्सेस होती थी कंट्रोल करने की, कलेक्शन करने की रिवेन्यू को। While the loyal empire functioned efficiently, but end of the 17th century, noble had built independent network. मतलब उसके टाइम तक तो अच्छा रहा, लेकिन 17th सेंचुरी तक, ठीक है, आते आते उन्होंने अपना एक नेटवर्क बना लिया। And their loyalties of empire were weakened by own self interest. मतलब जब कहते हैं ना इंसान धोखाधड़ी पे आ जाता है, या सेल्फ इंटरेस्ट, या फिर मतलब मिस्चीवियसनेस आ जाना, या फिर ऑनेस्टी ना रहना, तो फिर क्या होता है, डिक्लाइन तो होने ही लगता है। तो इट हैपन्स कि जब उन्होंने भी ज़्यादा अपने बारे में सोचना शुरू किया तो एम्पायर वीक हुआ। वाइल अकबर एट वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग 1570s, ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलेमा, और ये भी कहा जाता है उसने यूनाइटेड करने के लिए इंडिया को मेनी स्टेप्स ही फॉरवर्डेड टुवर्ड्स, लाइक उलेमा का उसने संगठन किया। ब्राह्मीन्स एंड जीसस्ट priest and who were Roman Catholics and Zoroastrians. These discussions took place in इबादत खाना। इबादत करना, पूजा करना, खाना का मतलब जगह पर है, तो उसने अपने जहाँ पर इबादत खाना यानी अपनी मॉस्क में या जगह पे उन्हें इन लोगों को बुलाया और वहाँ पर उनसे विचार विमर्श करता था।
He was interested in the religion, the social custom of different people. उसको ये भी था कि people are living of different kind in India, तो उसके लिए भी उसके मन में रिस्पेक्ट थी, सोचना चाहता था वो what should be done good. Akbar's interaction with the people of different faith made him realize the religion scholars who emphasized ritual of dogma and were often bigot. ना यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना है कि उसका जो इंटरेक्शन चला लोगों के साथ, उस इंटरेक्शन का पार्ट क्या था मतलब डिफरेंट फेथ हैं एंड रियलाइज दैट रिलीजियस, उसको ये धर्म के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आई, कुछ रियलाइजेशन हुआ, तो उसने क्या किया, स्कॉलर्स एम्फेसाइज रिचुअल एंड डोगमा. डोगमा का मतलब यहाँ पर है कि एक तरीके से नया एक क्लैरिफिकेशन, नया एक डिस्क्रिप्शन, नई एक एक्सप्लेनेशन निकाली गई जो कि जिसमें लोग क्वेश्चन ना कर सके. ठीक है, तो उसने एम्फेसाइज रिचुअल एंड डोगमा वर ऑफन बिगॉट. बिगॉट का मतलब यहाँ होता है कि आप किसी भी दूसरे को नेगेटिवली भी जज करते हो और उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते. यू डोंट हैव एनी टॉलरेंस विद एनी अदर्स, यू कैन से रिलीजन, या मे बेसिकली ये वर्ड जो है अपनी कुछ परंपराओं के लिए, कुछ हैबिट्स के लिए, या कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन के लिए होता है जहाँ इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो इसको हम बिगॉट को कट्टर भी कहेंगे हिंदी में. So their teachings created division and disharmony among these subjects, and this eventually led Akbar to the idea of Sulh Kul, that is universal peace, and this idea of tolerance did not discriminate between people of different religion in his dream. Instead of it focused on the system of ethics, honesty, justice, peace, and that was universally applicable. Abul Fazl helped Akbar in framing the vision of governance around this idea Sulekul, and this principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. मतलब सुलेकुल का मतलब है कि पूरी तरह शांति होनी चाहिए, तो इसमें इसका एक रिलीजन भी आता है, हु ही हैड एस्टेब्लिश, दैट इज़ दीन इलाही. तो सबके रिलीजन का रिस्पेक्ट करता था, सबका जेस्ट जो था इसको समझ आता था कि यही रिलीजन का एक पार्ट है. सो यहाँ पर उसने एक नई पॉलिसी शुरू करी, सुलेकुल. तो ये सुलेकुल है क्या, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Because video is lengthier now, so only 2 segments are left. We will discuss tomorrow then. Okay, thank you, have a nice day.